الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ پھر جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ وہ آیات ہیں جو عام طور پر ہم لوگ نماز میں سنا کرتے ہیں، پڑھا بھی کرتے ہیں، اور یہ ان آیات میں سے بھی ہیں جو آدمی سنے اور کھڑا ہو جائے۔ ایک بار پھر ترجمہ سنیے، بغیر اس کے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی کہ مدینہ میں نازل ہوئی، کون سا پس منظر تھا، وہ ہر آیات کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، بس اتنا کافی ہے۔ پھر جب ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے، قیامت آنے والی ہے، اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایمان مسلمانوں کا ہے۔ پھر بھی فی الحال ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، وہ ہم کو معلوم ہے کہ ایک دن یہ دنیا برابر کر دی جائے گی، ایک دم پلین، اور اس میں سب کھڑے ہوں گے اور ایک طرف بھاگ رہے ہوں گے، کوئی چل رہا ہوگا، کوئی گھسٹ رہا ہوگا، کوئی پیدل چل رہا ہوگا، کوئی جھک کے چل رہا ہوگا، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور وہ اس میں بھی صدیاں لگ جائیں گی پہنچنے میں اس جگہ، کوئی کیسے ہوگا، کوئی کس طرح ہوگا، یہ تو مان ہے۔ جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، انسان کیا دھرا یاد کرے گا، آپ دیکھیے یہ ہر شخص کے ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آدمی ایک دم موت کے قریب ہوتا ہے کبھی کبھی، اور اس کو اگر وقت بھی رہتا ہے تھوڑا سا، یعنی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہے کہ کوئی نہ سوچ پائے، تو اس کو اپنا پورا گناہ بھی معلوم یاد آنے لگتے ہیں، ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ بھی یاد آنے لگتا ہے نا۔ تو اس وقت جب کچھ ہے ہی نہیں اس کے بعد، تو ایک دم سے سب کچھ ہم کو یاد آنے لگے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب سمجھ جاتا ہے آدمی۔ اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ اب جو ہے یہ بھی منظر، قیامت منظر جب احادیث میں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک طرف جہنم کی آواز بھی دہاڑے مار مار کے سنائی پڑتی ہے۔ اس کی چنگاریوں کے بارے میں بات پتہ چلتا ہے کہ اس کی چنگاریاں اونٹ، جیسے اونٹ ہوتے ہیں اس طرح سے ایک چنگاری اس کی وہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا، تو جس نے سرکشی کی تھی، سرکشی کیا ہے؟ سرکشی بھی ہم جانتے ہیں، ظلم کرنا، گناہ کرنا، قتل و غارت کرنا اور دوسرے کو نیچا دکھانا، ہاں، جو بھی سرکشی کی تھی، جو بھی سرکشی کی تھی، تو جس نے جو بھی سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگیوں کو ترجیح دی تھی، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اسلام کا، اور اس سے بھی بہت اہم نقطہ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں 2 یا 3 کام کرنا ہوتا ہے، پھر ہم کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کون سا کام کریں اس میں، ہے نا۔ تو جس کو آپ نے ترجیح دی وہی آپ کا اپنا کام ہے، وہی دل والا کام ہے، وہی آدمی اس میں محبت کرنا اس سے دکھاتا ہے وہ، کیونکہ اس نے ایک دوسرا کام چھوڑ کر آپ کو ترجیح دی، ہے نا، تو گویا یہ کہ بڑی بات ہے۔ اب یہی چیز ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے، آزمانا کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں آگے بڑھنے والے ہیں، ایک مصیبت آ گئی، اس طرح سے مان لو جیسے سورہ جمعہ میں پڑھتے نہیں کہ مال اور اولاد مال فتنہ ہے نا۔ اب اولاد کوئی کام آ گیا، مال کوئی کام آ گیا، ہمارا اہم کام پہ ہم جا رہے ہیں،
अब आजमाइश में आ गए। अब हम किसको तरजीह देना है, ये अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, उस वक्त पता चलता है, टेस्ट होता है तब पता चलता है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात वबश्शिर साबिरीन। ऐसे कंडीशन में आदमी सब्र रहा और साबित कदम रहा तो फिर और वो उसके ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं। कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकाम ततनज़्ज़लु अलैहिम मलाइकतु। उसके लिए आप देखिए उसका ठिकाना फिर दोज़ख होगी, तरजीह दिया दूसरी चीज को। तो और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया था और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा था, जन्नत उसका ठिकाना होगी। कहने को ये आयत जो है वो छोटी सी थोड़ी सी है, मगर अब इस पर गौर करे आदमी तो बहुत ही अहम है। 2 लाइन बता दिया, 2 रास्ते बता दिए, वहदैनाहु नज़दैन, 2 रास्ता दिखा दिया अल्लाह ताला ने, और जबरदस्ती किसी ने नहीं किया। आप चाहे तो करें, न चाहे तो न करें। हाँ, ये करेंगे तो ऐसे से होगा रास्ते में मंजिल आने से पहले, और ये करके ढलान है भाई, सर पर चले जाइए इधर जहन्नम के लिए। तो इसमें जो है, जो आदमी अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा, अल्लाह ताला ने इसके लिए हमारे दिलो दिमाग में तईद किया है कि हम बुराई की बुराई जानें, बुराई की बुराई समझें, और उसके लिए ट्रेनिंग के लिए 1 महीना भी दे दिया हमको। अपने ख्वाहिशात नफ्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसको भी जान लो, है ना। और जो बाज रखा इस चीज को, वो जो है कहाँ जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। एकदम सीधी 2 टूक बात। इस्लाम 2 1 2 बोलता है, 2 2 4 बोलता है, साफ साफ। इसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई की चाहे नहीं। अलबत्ता आज हमको जो बात करनी है, जिस मौजू पर हमारा बात है, चूंकि हमें सुनते रहते हैं, इस सुनने के बावजूद हमारे दिलो दिमाग में वो कैफियत तारी नहीं होती, इसकी क्या वजह है, इस पर हम चंद मिनट में आपको बताते हैं। कुरान मजीद में एक आयत है, आयत एक हिस्सा है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन यश्खा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ये भी सुना करते हैं अक्सर। सूरह हदीद में आयत नंबर 16 के एक हिस्सा है, पार्ट है। कहा, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के सामने झुक जाएं। अभी मैंने जिक्र किया आपके सामने, अल्लाह का जिक्र था ना, अभी अभी जो कुरान का आयत पर अभी भी आयत जिक्र है, ये उस पर क्वेश्चन लगाता है। हम देखिए सामने आमने सामने बैठे हैं, सबके पास सब देखने में बैठे हैं भाई, पलके झपक रही हैं, गर्दन हिल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बदन हिल रहा है, लगता है ना जिंदा बैठे हैं। तो क्या हम वाकई जिंदा हैं? क्या हमारे पास वो दिल है कि जो यही आयत सुन के लोगों को लर्जा तारी हो जाता था, क्या आज वो हो रहा है? वही कुरान तो है, वही आयत है, क्या हमारा दिल वैसा है? इस पर थोड़ा सा गौर करना है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि अपने दिल को 3 वक्तों पर जायजा लो। अपने दिल को 3 वक्त ऐसे अयाम आते हैं, उसमें जायजा लो। कहाँ कहाँ? एक तो कुरान सुनने के वक्त, कुरान सुनने के वक्त, और तन्हाई में, और अल्लाह के जिक्र की मजलिस में। तीनों वक्त में अगर आपका दिल नहीं लग रहा है, उलझन पैदा हो रही है, तो समझो तुम्हारे पास, तुम्हारे पहलू में दिल नहीं है। अब अल्लाह ताला से तुम एक दुआ करो कि तुमको एक दूसरा दिल मरम्मत फरमाए। और हमारा दिन का जो शुरू से आखिर तक चलता है, नमाज, खाना पीना सब कुछ होता है, उसमें नमाज भी आता है बीच में। हम अपनी नमाज से अपने जायजा लें कि हमारी नमाज में वो कैफियत तारी होती है नहीं होती जो होना चाहिए। नहीं तो वो है ना, अल्लाह इकबाल ने कहा कि तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसे नमाज से बच, ऐसे इमाम से बच, है ना। तो हम एक दूसरी कैफियत में चले जाते हैं। देखिए, इल्म तो बढ़ रहा है, ये इल्म है ना, अभी दी मिला ना, आपको दिया, जो जाने जो सीखे वही तो इल्म है ना। इल्म बढ़ने के बाद भी क्यों आदमी में वो कैफियत तारी नहीं होती जो होना चाहिए इल्म के ताल्लुक से? क्यों सुकून बेसुकूनी की हालत में आदमी आ रहा है? वही सूरह फातिहा पढ़ के आदमी सुकून मिलता था, वही नमाज पढ़ के आदमी को सुकून मिलता था, अब सुकून ही नहीं मिल रहा है। क्या है आखिर, क्या बात है इसमें, कौन सी ऐसी चीज हो गई है? देखिए, कुरान मजीद जो है ना, ये मस्जिद की किताब नहीं है कि मस्जिद में रखी हो, जैसे मस्जिद चीज है ना, जहाँ नमाज चीज है ना। कुरान मजीद किताब ये गाइड है। हम लोग उस गाइड से गाइड ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, एक तो ये है। आदमी सोचिए जरा से
जिस्म तो जिंदा है मगर इंसान क्या है, मरा हुआ है, मरा हुआ इंसान है, उसी दिल की वजह से। कुरान मजीद में जब कहा कि ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, देखते नहीं, समझते नहीं, सुनते नहीं, मैं शुरू पढ़ा था, हमें हैरत हो रही थी। बाद में कहा कि एक देखो, ये अंधे गूंगे बहरे बताया, वाज़ेह नहीं किया कि किसको कहा, अंधा वाले को कहा जा रहा है कि आंख वाले को कहा जा रहा है। बाद में दूसरी सूरतों में कहा कि इनकी आंख है मगर देखते नहीं, इनके कान है मगर सुनते नहीं, दिल है मगर समझते नहीं, है ना। अब हम लोग मरे हुए उसको समझते हैं जो कब्रिस्तान में है, शहर खामोशा बोलते हैं, खामोश है ना। ऐसे यार देखिए ना, लोगों से मुलाकात करें, कितने लोग मुर्दा हैं, चल फिर रहे हैं मगर वो जिंदगी नहीं है उसमें। हम में हमारे साथ में रहते हैं बहुत लोग ऐसे, हमारे घरों में रहते हैं ऐसे, कि कोई जिंदगी नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। क्यों ऐसा क्या है, कोई उत्साह नहीं है। आज के ज़माने में तो और ज़्यादा गड़बड़ होता जा रहा है, बहुत तेज़ी से लोग एंजाइटी और उसमें चले जा रहे हैं, साइको में, है ना। आखिर क्या है, ये सिर्फ वही बात है कि अल्लाह ताला ने कहा इसमें, क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के सामने झुक जाएं। कौन, कब आए वक्त, वक्त कब आए, कब कहा गया है। अब आज की जो कंडीशन, आज की सिनेरियो में देखिए, इसमें तो और हमें चौकन्ना होना चाहिए, और चौकन्ना रहना चाहिए, और रोज की तैयारी करना चाहिए, उनको जहाँ जाना है उसके लिए फिट होना चाहिए, है ना। हालात तब्दील होते रहते हैं। अभी रमज़ान में आने वाले, हमने अभी कौन सी तैयारी की है सिवाय इसके कि हम तेल रख लिया, वो प्याज रख लिया ताकि रमज़ान में पकौड़ी बन सके। सोचिए आपकी आपके तरजीहात क्या है, तरजीहात में क्या क्या है, उसको कभी गौर किया। आपकी जो तरजीह होगा वही आपका खुदा है, कोई दूसरा खुदा नहीं आएगा। आप देखिए क्या खुदा को कि उस शक्ल सूरत हो वही आपके सामने आए। खुदा तो आप बनाते हैं ना। खुदा, अल्लाह रसूल ने कहा ना, खुदा जो है अल्लाह ताला आपके गुमान के मुताबिक है। आप किस तरह गुमान करते हैं, जिस तरह गुमान करें वही खुदा है ना। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हमारी भावनाओं पर बहुत चीजें। कभी सोचा आपने कि कब हम नमाज पढ़ते हो, नमाज टाइम हमारा आंख भर आई हो, वो कितना दिन हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, पहले कल हुआ था, या सुबह फजर में हुआ था, या रमजान में हुआ था, सब रो रहे थे, हम भी रोने लगे। आदत हो ना, देख कर भी फर्क पड़ता है, माहौल से भी फर्क पड़ता है ना। तो कब हुआ कि आपका दिल कभी रोया है, ये कभी ये हिचकी लिया है, कभी शिद्दत से अल्लाह ताला को पुकारा है। आपके अपने काम के लिए, आपके पर्सनल काम के लिए, आप कोई काम फंसा हुआ उसके लिए भी आप शिद्दत से किए हैं कि अल्लाह ताला को ऑर्डर दे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो ऑर्डर दे रहे हैं का, वो आजिजी है, वो दिमाग से नहीं आता। दिमाग कहता है हाँ यही वाली दुआ पढ़ो, और दिल दूसरी चीज करता है। दिल की बात ही एकदम अलग है। अगर आपको याद नहीं है कि आपको कब सिसकी पैदा हुई थी, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास दिल नहीं है। फिर से अल्लाह ताला के सामने गिराइए और वो दिल मांगिए। एक आदमी जो है हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, वो कहा कि हजरत मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, मैं क्या करूं, रो रहा था वो, मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, बहुत सख्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने दिल को मौत को याद दिलाओ, मौत को याद दिलाओ अपने दिल को। कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, कैसे करूं। क्या देखो, दिल सख्त गुनाह से नहीं होता। आप लोग फिर सुनिए, दिल सख्त गुनाह से नहीं होता, दिल सख्त होता है गफलत से। समझ रहे ना, गफलत, गुनाह क्या है ना, धुल जाता है। गफलत जो गाफिल आदमी हो जाते हैं ना, वो एकदम अलग मामला है। दिल हमारे एकदम शीशे की तरह है, दिल हमारा एक बिल्कुल शीशे की तरह है, और धूल जो है साफ हो सकता है, मगर दिल अगर जंग लग जाए शीशे में, शीशे में जंग लगता है ना, तो साफ होगा क्या, वो नहीं साफ होगा। वो कैसे साफ होगा, ये कुरान मजीद में हमको बताता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है सारे इंसानों के लिए, मगर इत्तेफाक है हमारे पास है, और हम इसको ना यूज करते हैं, ना यूज करने देते हैं। तो दिल जो है गफलत से मरता है। आप इस बात को हमेशा सामने रखिए। और सबसे ज्यादा रोने को उसको कहिए जो कभी रोया ही ना हो। कभी हम रोए नहीं, रोए हैं किसके लिए रोए हैं, किस चीज के लिए रोए हैं। आप देखिए हमारे, हम तरजीहात, अभी जो तरजीहात पे आई थी कुरान मजीद में, और वो किसको तरजीह देते हैं। हमारे पास कुरान भी रहता है साथ में, हम साथ लिए रहते हैं कुरान, ये लिए रहते हैं, कुरान भी लिए हैं ना इसमें, है ना, इसमें सबके अल्हम्दुलिल्लाह के पास कुरान रहता है। ये कभी क्या उसको भी खोलने की तौफीक मिलती है। हमारा दिल कभी उधर रुजू करता है, जरा से 10 मिनट इधर भी थोड़ा सा रुजू कर देखिए आज हमारा रब हमारे लिए क्या कहता है। मैं कभी कभी कुरान मजीद पूरे पूरे जो पूरा कुरान रहता है, पार्ट वाला नहीं, कभी कभी ऐसे ही खोल के बीच से उंगली लगा ऐसे खोले, देखें कि आज अल्लाह ताला हमारे लिए क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या कह रहा है ना।
तो कभी कभी लगता है ये एकदम सटीक बात है कि यार यही तो होने वाला है या हो चुका है, यही अल्लाह ताला ने बताया है। तो हम जो है अपने हमारी लाइफ तरजीहात में क्या है, हम अपने बच्चों के करियर में रोते हैं, अपने आखिरत में नहीं रोते। उसकी आखिरत छोड़ो, उसकी आखिरत हम चर्चे नहीं करते। वो तुमने देखा है लोगों को, अपने बच्चों को नमाज नहीं उठाते फजर में, अपने बीवी को नहीं उठाते, अपने बेटी को नहीं उठाते, उसकी आखिरत छोड़ो। हम उसके अपने बच्चों के करियर के लिए बहुत परेशान रहते हैं और अपने आखिरत के लिए कितना परेशान होते हैं। क्या आप समझते हैं हमारे पास वो ईमान है? अकल तो कहती है हाँ आखिरत है, दिल भी कहता है क्या? यकीन दिलों में होता है। तो हमको इस बात से नहीं है मामला कि हम कब मरेंगे, इस डर नहीं है हम कब मरेंगे। डर इस बात है कहीं अभी अभी हम मरे तो नहीं है। फिर सुनिए, संस्कृत में एक श्लोक करता है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। समझे ना? ये नहीं, मरना सबको है, एक दूसरे को मरना है। हम क्या मरे हुए तो हैं? हम मरे हुए तो नहीं है। कैसे नहीं मरे हुए यार भाई? यहाँ इसे देखिए, हम एक वीडियो देख रहे थे, 3 लड़कियां आ रही थी और तीनों नकाब में थी। 2 लड़के घेरे हुए थे, छेड़ रहे थे। ठीक है, कोई मोबाइल छीन रहा था, कोई छीन रहा था, घेरे हुए थे। बगल से लोग चले जा रहे हैं। क्या समझते हो, जिंदा हैं? कैसे जिंदा है भाई? वो एक आदमी आता है, फिर वहां से वो जिंदा था, मार भाया वो। क्यों जिंदा था वो? हम भी चले जाते हैं कभी, ऐसे देखते हैं, हमारा कोई काम रहता है, रास्ते में कोई गिर पड़ा गया, ऐसे एक बार देखे वो चले जाते हैं। ठीक है, आपने देखा, समझा, समझ लिया कि ये कोई लोग उठा रहा है तो जाए, चले गए, आपको जल्दी में जाना है। मगर थोड़ा गौर तो कर लीजिए जरा से, काश मैं होता या मेरी जगह मेरा घर वाला कोई होता। हम तो कहते हैं अरे शराब पिया चला गया। क्या है वो? क्या आपका दिल भी यही कहा है? आपके दिमाग ने कहा है वो तो। आप दिमाग की बात सुनिए। अभी इसमें पढ़ा, वरना नफ्स यौम तज़क्कुरु इंसान मा सआ बुरियतुल जहीम लिमन यरा फअम्मा मन तगा वासल हयातद दुनिया फइन्नल जहीम हियल मावा व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा। और जिसने अपने नफ्स की फरमाबरदारी नहीं की, यानी नफ्स को नहीं माना, नफ्स को दूर रखा, है ना, वो बचा लिया गया, अल्लाह ताला सामने खड़ा होगा। तो हमने नफ्स को नहीं मारा, किसको मारा? जमीर को। इसको जिंदा रखना चाहिए था, इसको मारना चाहिए था, उसको बजाय रखे। क्या ये बात सही नहीं है? हमारा जमीर कितना जिंदा है, हम कितना उत्सुक किस चीज के लिए रहते हैं, किसको तरजीह देते हैं हम किसी बात को। हालांकि इससे थोड़ा अलग है, मगर एक बात है उसमें भी है कि कहा रहीम दास ने, रहीमन वे नर मर चुके जो कछु मांगन जाए। रहीम दास ने कहा कि वो लोग मर चुके हैं जो कुछ किसी से मांगने जाते हैं। फिर जानते क्या कहा अगली बात, उनसे पहले वो मरे जिन मुंह निकसत ना आए। तो बेचारा अपना जमीर बेच के आपके साथ मांगने आया है, और तुम नहीं दिए, वो तो उससे पहले वो मरा हुआ है। समझ ना? ये है कुरान मजीद की एक आयत है, पढ़ते हैं हम लोग, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, है ना, पढ़ते हैं ना, सूरह मुत्तफिफीन में है, 30वें पारा में। कहा नहीं, कल्ला बल, ये रुकने की, जब नमाज पढ़ते हैं ना, कुरान पढ़ने में रुका जाता है, नहीं, रुक गया थोड़ा सा, बल्कि उनके दिलों पर जंग लग चुकी है। हम यहाँ बैठे, हम अपने बारे में सोचें केवल, क्यों? उन कामों की वजह से वो करते रहे। अब आइए, उसमें जो गुनाह हम जब करते हैं ना, एक परत पड़ जाता है और फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो परत टाइट हो जाता है, फिर रगड़ने से भी नहीं छूटता, उसके लिए दूसरा वॉशिंग पाउडर लगाना पड़ता है, समझे नहीं? तो वो जो है वो अपने कामों की वजह से। और एक और है, दिल एक दिन में नहीं मरता, दिल एक दिन नहीं मरता। फिर सुनिए, दिल एक दिन में नहीं मरता। आप देखिए, आप पहली बार गुनाह करे होंगे, कैसे लगा होगा, बहुत टाइम लगता है उसको मरने में, मारना पड़ता है, वो जिंदा दिल है वो। किडनी जानते हैं? किडनी के बारे में कितने छेद होते हैं उसमें, छानने वाले कितने छन्ने लगे जाते हैं, वो लाखों की तादाद में है। और 25% भी अगर छन्नी भर गई ना, पता नहीं चलता कि हमारे दिल में, हमारे किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। 45% भी हो गया ना, तब भी पता नहीं चलता कि हमको उसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे हम चाय छानते हैं ना, कुछ फंस भी गया तब भी काम तो हो जाता है ना उसमें। 50+ होता है तो वो पता चलने लगता है कि क्या क्या होने वाला। दिल भी जल्दी नहीं मरता, हम मारते हैं, बार बार मारते हैं, ऐसे नहीं मरता, फिर वो जिंदा हो जाता है भाई। तो वो जो है बहुत टाइम लगता है। अगर आज ये कुरान जो हमने पढ़ा इससे पहले,
बहुत खतरनाक चीज़ है, अब हिलाने वाली चीज़, वो असर नहीं कर रहा है, असर नहीं करता, तो उसमें कमी नहीं है। हमारा छन्ना जो चाय वो छान रहे ना, वो पूरा भर चुका है, छन नहीं रहा है। हम समझ रहे हैं कि हम तो डाल तो रहे हैं पूरा, समझ रहे नहीं, तो कमी उसमें नहीं है, बल्कि कमी किसमें है, हमारे दिल में है। फिर इन्हा ला तामल अबसारु वलाकिन तामल कुलूब, आंखें अंधी नहीं होती, अंधे तो सीने के दिल होते हैं। ये समझिए, दिल पे मैसेज कहाँ से पहुंचता है, हमारे आंखों से पहुंचता है ना। अपने आंखों की हिफाजत करेंगे तो आपका आपका दिल हिफाजत में रहेगा। हम जो मैसेज डालेंगे उसी से वो कनेक्ट होगा, वो दिमाग तक पहुंचाएगा, दिमाग वहां पहुंचाता है, पूरा वैसे बन जाता है, यहाँ तक कि हमारा डीएनए भी चेंज हो जाता है, हमको वही चीज अच्छा लगने लगता है जो वो कहता है। तो हम देखते तो हैं सच, मगर मानते कहाँ हैं? क्यों? क्योंकि दिमाग तो कह रहा है हाँ ये बात सही है, दिल तक बात ही नहीं पहुंची, दिमाग का एक क्वेश्चन आंसर देके वो बाहर करके वहां तक पहुंचे नहीं। जब दिमाग जो है ना पूरी तरह ले लेता है, थोड़ा रुकता है, तो फिर दिल में जाता है और फिर बेबस हो जाता है, फिर वो काम करता है आगे। सूरह माउन में भी हम पढ़ते हैं नमाज में, फवैलुल लिल मुसल्लीन